Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 23421050 and 2331 0464. But do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद निशित। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं शेयर बाजार विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। अमन जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The headlines: Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for the World Bank to promote a two-way exchange of innovations. ESI scheme enrolls over 20 lakh and 74,000 new workers in the month of August this year. And on the Wall Street, the Nasdaq gains 0.6% on the mega cap shares ahead of the quarterly results of major companies. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व बैंक से नवाचारों के दो तरफा आदान प्रदान को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इस वर्ष अगस्त माह में ईएसआई योजना के अंतर्गत 20,70,000 से अधिक नए कर्मचारियों ने नामांकन कराया और अमेरिकी शेयर बाजार में प्रमुख कंपनियों के तिमाही परिणामों से पहले मेगा कैप शेयरों में बढ़त के चलते नास्डैक में 0.6% की वृद्धि। Well, Laman, to begin with, on top of everything, the carnage that we saw in the past week, or let's say 10 sessions almost now, the carnage which has happened, almost the markets are down mostly 10 to 15% mostly. What are the factors you would attribute to this downfall? You see, it's critical for small investors in particular who are actually trading and they actually are looking at returns going up. But this downtrend has been a big curse to them. Although some people would like to hold on, would like to go on for the market to go on further before they go on for buying. But in my opinion, some of the key factors have been the kind of facilities and subsidies Chinese government is giving as one, in terms of movements of fund by FIIs taking place. The second is the US elections which are taking place, and as a result, whenever such elections of a large nation, whether it is a size-wise or capital-wise large nation, happens, there are funds which move from A country to B. And third, which is there, is the fact that there are festival seasons going on, and hence a lot of small investors take out money for festivities as well as for wedding seasons, and these are some of the key reasons in my opinion. जी। और दिल्ली से हमारे साथ प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए। प्रीतम जी, आप अपने रेडियो सेट को प्लीज ऑफ कर दें पहले, सबसे पहले, उसके बाद सवाल पूछें। अब कुछ ठीक है सर? जी, पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था सर, जैसे कि हमारी मार्केट जो है कि डाउन जा रही है लगातार, करीब 21,000 का जो है 25,000 के आसपास पहुंचने की सोच रहा था कि करेक्शन होगी। बट मैं सोच रहा था कि अगर बाहर के लोग पैसे निकाल रहे हैं, यहाँ के लोग पैसे लगा के रहे हैं, तो मार्केट इस तरह से। देखिए जी, जो बाहर के लोग पैसा निकाल रहे हैं, सिर्फ एक बाहर के लोग पैसा निकाल के बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ के पे निवेश कर रहे हैं। इसका जो इकोनॉमी है या इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है उसके कोई लेना देना नहीं है।
जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, उसकी अर्थव्यवस्था है, काफ़ी सुदृढ़ और अच्छी चल रही है। पर मार्केट्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, किस वजह से पैसे निकाले जाते हैं, निवेश किए जाते हैं और किस समय किए जाते हैं। क्लोजिंग्स के पीरियड्स भी होते हैं, उस समय भी किए जाते हैं। उस समय विड्रॉ करके काफ़ी सारी कंपनीज अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छा दिखाना चाहते हैं। बड़े सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से कभी कभी मार्केट मूवमेंट्स होती हैं। पर अभी मेरे विचार में थोड़ा मार्केट में करेक्शन आना आके और होने की उम्मीद हो सकती है। Our next caller is Yogesh from Delhi. Yogesh, welcome to the show. जी नमस्कार आप सभी को, थैंक यू सो मच। नमस्कार। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि मार्केट में लगातार जो ये गिरावट आ रही है, हमारे पोर्टफोलियो में लाखों रुपए कम हो चुके हैं, तो थोड़ी घबराहट भी होती है। हमारा ज्यादातर निवेश म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जा रहा है, तो क्या इसमें खरीदारी करी जाए ऐसे में निचले स्तरों पे, या फिर अभी मार्केट के और गिरने के संकेत दिख रहे हैं? और ये कब तक चल सकता है, उसका क्या मुख्य कारण है जी भारी गिरावट मार्केट में चल रही है? ये दूसरा सवाल था आपका? जी सर, जी सर। ओके। देखिए जी, अभी प्रश्न का मैंने उत्तर भी दिया था आधा महीने 1 मिनट पहले। पहली बात तो यह है कि अभी और थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर हम अंदरूनी कारण देखें जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, इस समय त्योहार का सीजन है और शादियों का सीजन है। दोनों के लिए जो स्मॉल निवेशकर होते हैं वो निकालते हैं। उसके अलावा जो है फिर अब आगे जाके जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स भी होते हैं, इलेक्शंस का भी मैंने बताया, चाइनीज का भी मूवमेंट है, FIIs का जो मूवमेंट है। बट हिंदुस्तानी जो निवेशकर है वो अभी भी बड़ी कंपनीज भी निवेश कर रही हैं, IPOs भी आ रहे हैं, तो इसलिए मार्केट बढ़ेगी। अभी बिल्कुल लो नहीं आया है, पर अभी अच्छा टाइम भी है अगर आप कुछ निवेश करना चाहें। और जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, तो आपका पोर्टफोलियो तो देखिए ऊपर नीचे जब मार्केट के अंदर लेके चलते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू लेके चलें, तो ऊपर नीचे वो होता ही है। ऐसा कोई क्रैश वाला सिचुएशन नहीं है कि आप इसको सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट आ गई तो प्रॉब्लम आ गई। अभी पीछे चढ़ा भी बहुत ज्यादा हुआ था, तो इसलिए मेरे विचार में एक नेचुरल करेक्शन है और उसको हमें नेचुरल करेक्शन के फॉर्म में ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं रत्नाकर जी, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है, जैसे इन्होंने एक्सपर्ट ने बताया कि अभी मार्केट बहुत नीचे आ रहा है, तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने उससे घबरा कर बाहर निकलना चाहिए कि बने रहना चाहिए, ये सवाल है। और ये अभी करेक्शन कितना तक हो सकता है, और ये सवाल। ओके, देखिए जी, करेक्शन थोड़ा और होने की उम्मीद है। मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा हो, पर वो और भी चीजों पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कोई और निवेशकर हो, जैसे अभी IPOs भी आ रहे हैं और चीजें आ रही हैं। हो सकता है कोई अभी वर्ल्ड बैंक की मीटिंग, IMF की एनुअल मीटिंग चल रही है, वहां से हो सकता है हमारी जो वित्त मंत्री हैं कुछ ऐसी अच्छी न्यूज ले आए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले आए जिसकी वजह से हमें देखने को मिले कि मार्केट में उछाल आ जाए, ये जो गिरावट है खत्म ही हो जाए, ऊपर बढ़ने लगे। तो ये कहना कि ये गिरावट कब तक चलती रहेगी, जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जब भी ऐसी कोई गिरावट आती है और आपने अगर ज्यादा पे खरीद रखा है तो आप उसको होल्ड करके रखें। आपको कोई ऐसा नहीं है कि अभी पैसे की जरूरत है। जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनको ज्यादा चिंता होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इतना ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलर इज गुरुनाथ फ्रॉम थाने। गुरुनाथ, वेलकम टू द शो। सर नमस्ते। नमस्कार सर, अमन सर को भी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो लार्जेस्ट कंपनी है जो मतलब ये IPO लॉन्च करती है सर, अभी एक जो कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, अभी जो लॉन्च किया था वो जैसे लिस्टेड होते ही वो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे गिरावट हो गई और इन्वेस्टर का पैसा चला गया। तो सर मतलब अभी भी एक कंपनी अभी लॉन्च करने वाली है, बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी। तो सर मतलब इन्वेस्टर ने कितनी सूझबूझ के साथ ये मतलब इसके तरफ IPO की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सर। आपने बड़ी अच्छी बात करी। देखिए, जब भी कोई ऐसी कंपनी निवेश करती हो, छोटी हो, मिड साइज हो या बड़ी हो, निवेशकर को जरूर देखना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनके जो आंकड़े हैं वो कैसे आए हैं, किस टाइप के बिजनेस में है, क्या काम करती हैं, क्या काम नहीं करती हैं, वो स्टेबल बिजनेस है या वॉलेटाइल बिजनेस है। अगर इन चीजों को मापदंडों को देखेगा तो इसमें गिरावट आपको जो आप उसमें डिसाइड करेंगे किसमें निवेश करना है नहीं देखने को मिलेगा। पर हम क्या होता है, हम कहते हैं हर्ड बिहेवियर, भेड़ चाल की चाल। लोग खरीद रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अच्छा है तो खरीदना शुरू कर दिया, उन लोगों ने कहा नहीं डरने की बात है तो बेचना शुरू कर दिया। जब वो हर्ड बिहेवियर होता है तो उसमें लॉसेस होने की उम्मीद होती है। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं शंकर जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। नमस्कार। SIP in mutual funds has been growing since 2022 phenomenally. तो ये करेक्शन जो आ रहा है वो
इतना नहीं आएगा, क्योंकि और एसआईपी बढ़ती ही जाएंगी। अभी हार्डली कितने आपके हिसाब से परसेंटेज लोग इंडिया के इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, और अगर वो लोग और बढ़ जाएंगे तो ये गिरने के चांसेस तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या पैसे लगाते रहना चाहिए लगातार हर इस तरह की फॉल आउट पे। और दूसरा सवाल सर मेरा है कि ये हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई भी इक्विटी अगर आप कोई बेचता है, एचडीएफसी बैंक या ऐसे बैंक या कोई भी अच्छी बैंक या कोई खराब मतलब नॉर्मल इक्विटी, तो देयर इज ऑलवेज अ बायर। मैं तो खरीद नहीं रहा, तो कोई ना कोई हमेशा बायर है। सो हाउ डज इट हैपन दैट देयर इज ऑलवेज अ बायर फॉर एनी स्टॉक, लिक्विड स्टॉक? थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात की। पहला दूसरा क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा। देखिए, मार्केट के अंदर हम एक चीज कहते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कि सबके पास सारी एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक समय था आज से 40 साल पहले, 80 के दशक में, 70 के दशक में, जब सभी के पास एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती थी। न्यूज़पेपर्स में रेट्स आते थे 90 के एंड तक, और तब आपके पास फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार के शेयर ज्यादा होते थे तो वहां से भी फिक्स आती थी, तो वहां पे ऐसा रैंडमनेस होने की उम्मीद नहीं होती थी, तो पता होता है क्या चीज होगी। अब क्योंकि हर एक के पास अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन है, अलग सोर्सेज हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी है, न्यूज के माध्यम से भी, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी है, तो इसलिए हर एक का जो चलन है वो अलग अलग रहता है। इसीलिए हर एक टाइम आपको बायर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा आपने प्रश्न किया था कि जो एसआईपीज की बात है, देखिए एसआईपीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ के हिसाब से देखा जाता है कि फंडामेंटल्स किसी भी एक्सचेंज के शेयर के जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, जो एसआईपी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसी कंपनीज में है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें देंगी, तो हमें डरने की बात नहीं है इस टाइप के मूवमेंट से। और ये एक करेक्शन है जैसे मैंने पहले भी कहा, और ये कोई ऐसा क्रैश नहीं है जिससे आप डरें। और अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं विजय। विजय जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछें। सर गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, एज अभी नया शुरू कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, सो कौन सा सेक्टर सर आप एडवाइस करेंगे टू इनिशिएट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए लॉन्ग टर्म जो है बड़ा मिसलीडिंग है शेयर मार्केट के हिसाब से, बिकॉज पहले एक समय होता था जब लॉन्ग टर्म कहते थे लोग 1 साल 2 साल 3 साल शेयर मार्केट में। आजकल लॉन्ग टर्म तो 6-6 महीना भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म हो गया, बिकॉज शॉर्ट टर्म जो है डे ट्रेडर्स और डे इन्वेस्टर्स और वीक इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो सेक्टर्स कहे, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोर सेक्टर्स हैं जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपका डिफेंस हो गया, इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं, जो और न्यू टेक जो सेक्टर्स जिसको सरकार भी महत्व दे रही है, जैसे आपके ईवी हो गया, इलेक्ट्रिक बेस्ड सिस्टम्स हो गए और सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो ये जो सेक्टर्स हैं इनमें आगे आने में आपको ग्रोथ मिलेगी। और एज अ कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जब आप देखें तो जरूर देखें कि कौन सी कंपनी है। जस्ट बिकॉज वो कंपनी कह रही है कि मैं ईवी कर रही हूं तो उसको ना देखें, उसके फंडामेंटल उस कंपनी के कौन प्रमोटर्स हैं, कैसी कंपनी है, कब से बिजनेस में है, क्या कर रही है। सोलर है, वो भी एक एनर्जी काफी महत्व दे रहे हैं, सारी स्टेट्स फैसिलिटेट कर रही हैं, तो उनमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। And moving on to some stories now, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman has called on the World Bank to promote a two-way exchange of innovations drawing from the transformative experiences of the Global South in the sectors of digital inclusion and sustainable energy. The Finance Minister made this statement while addressing the Development Committee plenary session on a future-ready World Bank group at the World Bank during the annual meetings in 2024 in Washington, D.C. She sought a more affordable World Bank with a more competitive pricing model to foster broader participation, incentivize middle-income countries to borrow more, and deepen development impact. Nirmala Sitharaman also reiterated India's stand that the World Bank should adopt a strictly evidence-based and data-driven approach when preparing global indices and country competitors such as the worldwide governance indicators and the new Be Ready Index. The finance minister also participated in the IMFC plenary session on MD's global policy agenda at the International Monetary Fund during annual meetings. At the event, she said that in 2024, the global economy has shown remarkable resilience while output is nearing its potential in some major economies. Headline inflation has generally moderated and moved closer to the central bank's targets. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है।
इस साल अगस्त में कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के अंतर्गत 20,74,000 नए कर्मचारियों ने नामांकन कराया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार अगस्त में 28,917 नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के दायरे में लाया गया है। पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में साल दर साल पंजीकरण में 6.80% की वृद्धि हुई है। And we have a caller from Delhi now. Satish, welcome to the show. Good evening, sir. Good evening. My question is regarding Investor Education Fund. Sir, I have applied with all formalities in June last year, 23. Until date, my shares have not come to Demat account. I have visited 10 times. They say that it takes more than 1.5 years to credit the shares. This is the office here, Parliament Street. I mean, what type of action government is taking to take out our shares from this? The second question is, why this company or registrar is not sending notices to the shareholder that their shares are likely to be transferred to the Investor Education Fund account? Sir, kindly guide in this matter. So, आपने जो पहला प्रश्न किया उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप सेबी को अप्रोच करें और उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म है और वहां से कुछ आपको रियायत मिलने की उम्मीद हो सकती है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया वो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनका एक्चुअली ये काम नहीं है कि ये सब नोटिस भेजें। ये कंपनी का ही काम होता है। अगर कुछ होता है ये मार्केट न्यूज के थ्रू पता चलता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर आप चीटेड फील करते हैं, आप लगता है आपका धोखा हुआ, आपके साथ गद्दारी हुई उस कंपनी ने की जब ऐसा कुछ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी नहीं है कि जहां पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या इक्विटी होल्डर्स हैं उनको पहले से खबर दी जा सके, बिकॉज ये ऐसी न्यूज नहीं है कि पहले से रेडी होती है कि ये चीज होगी। And moving on to some other stories now, onto the US markets. On the Wall Street, the Nasdaq ended higher yesterday, driven by mega cap shares, and investors awaited quarterly results from some of the biggest companies next week. The benchmark 10-year Treasury note yield edged higher as investors awaited US employment data for clues on the likely path of Federal Reserve interest rate cuts. So the Dow Jones Industrial Average fell 260 points or 0.6% to end at 42,114. But the Standard & Poor 500 shed 2 points to 5,808. And the Nasdaq Composite gained 103 points or 0.6% to 18,519. During the week, only the Nasdaq closed the week with gains rising 0.2%. But the S&P fell 1% and the Dow ranked 2.7%. Next week, the final stretch before the November 5th US presidential election is crucial for the Wall Street. This is when results from the mega cap tech firms including Alphabet along with the October US non-farm payrolls report. और जयपुर से हमारे साथ वंदना जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि किसी स्टॉक का वैल्यूएशन और प्राइस किसे कहते हैं और कौन सा वैल्यूएशन अच्छा रहता है, मतलब ऊंचा या जो भी है ना। देखिए जी, जो स्टॉक वैल्यूएशन होते हैं उसके बड़े सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है। पर जो आम आदमी देख पाता है वो मार्केट वैल्यू देख पाता है, जो अनाउंस भी होती है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई भी और एक्सचेंज हो। वो मार्केट वैल्यू खरीदारी के ऊपर होती है। पहले एक प्राइस की जाती है जिसको ऑफर प्राइस करके लॉन्च किया जाता है। वो प्रीमियम पे भी हो सकती है, डिस्काउंट पे भी हो सकती है। प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब है कि सपोज अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो उसको डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो 9 रुपए पे भी हो सकता है। प्रीमियम पे है तो 10 की जगह 15, 20, 100 भी हो सकती है। तो लॉन्च होने के बाद फिर आप और मैं जब उसको खरीदते हैं तो उस खरीदारी और बेची से वो ऊपर नीचे मूव करती है, तो मार्केट प्राइस है। उसके अलावा बहुत सारे वैल्यूएशन के तरीके हैं। कोई भी आप किताब इस समय तो गूगल के अंदर भी आप सर्च करेंगे तो काफी सारी नोटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट है, इंटरनेशनल एजेंसीज की वेबसाइट है, जहां पे जो वेल नोन टेक्निक्स हैं, इवन जो कुछ सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी वहां पे, और वो तरीके किए जाते हैं। बट वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, वो वैल्यूएशन एक कंपनी के स्टॉक के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। नेक्स्ट कॉल इज अम्बरीश फ्रॉम मुंबई। अम्बरीश, वेलकम टू द शो। सर, गुड इवनिंग टू मार्केट मंदरा टीम। गुड इवनिंग अम्बरीश। सर, मेरे पास ना एक फेमस ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी का शेयर है। वो कंपनी ना NCLT रेफर हो गया, बट
बाद में सम अदर कंपनी हैज टेकन ओवर दैट। अभी वो शेयर डीलिस्ट हो गया फ्रॉम NSE BSE। अभी मैं उसको कैसा बेच सकता हूँ? वुड यू प्लीज हेल्प मी इन सेलिंग इट? देखिए जी, पहली बात तो अगर वो कंपनी किसी और ने खरीद ली है तो आप उस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। वो उसमें कोई जरूर जब किया जाता है तो शेयर एक्सचेंज में इशू होता है तो उसमें आपको नए शेयर इशूज किए जाएंगे। नहीं तो आप OTC के ऊपर जाके उसको निकाल सकते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस होते हैं जहां पे जो शेयर डीलिस्ट हो जाते हैं वहां पे उनकी बोली लगाई जाती है। पहले जैसे बोली लगाई जाती थी आज से 30 साल पहले, उस तरीके से बोली लगती है और उसके अंदर फिर वो बिक जाते हैं। अब कोई फिजिकली बोली नहीं लगाते हैं, लगाते तो सिस्टम के ऊपर ही है, बट वो एक्सचेंजेस उसी के लिए पर्पज के लिए है जो शेयर्स डीलिस्ट हो जाते हैं। जी, और अब चलते हैं बिहार की ओर। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं संदीप। संदीप जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। नमस्ते सर, और अमन अग्रवाल सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयर हैं या शेयर ब्रोकिंग, जो शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं, उन कंपनियों के शेयर में यदि लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है? यदि 5 वर्षों से ऊपर के लिए निवेश किया जाए तो किस प्रकार का फ्यूचर रहेगा? देखिए, पहली बात तो जनरली जब हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काफी बनी रहे। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट ही करना चाहते हैं तो बैंकों का लेके, उससे ज्यादा सिक्योर चाहते हैं तो RBI के जो गवर्नमेंट टैक्सेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इस तरीके से और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वगैरह हैं, उनमें निवेश करें, वो ज्यादा सेफ हैं। तीसरा जो आपने कहा सिक्योरिटीज मार्केट है, इससे बेटर है जो AAA रेटेड कंपनीज हों, या अगर ये सिक्योरिटीज मार्केट की कंपनीज हों या AMC कंपनीज हों जो AAA रेटेड हों, उनके अंदर करेंगे तो आपका निवेश सेफ रहेगा। बाकी अगर आप ज्यादा उछाल चाहते हैं तब आप फिर ऐसी कंपनीज में करें जो ज्यादा बहुत प्रोमिनेंट ना हो, उनमें भी करेंगे तो आपको उछाल देखने को मिल सकता है और आपको उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉलर इज दत्ता फ्रॉम इंदौर। दत्ता, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल है, ये लॉन्ग टर्म अपनी जनरेशन में किसी को असेट देनी हो तो पहले जमीनें जायदादें दी जाती थी। आजकल क्या हम फंड के थ्रू ये सेफ रहेगा 20-25 साल में? क्योंकि हमारे पास अपने लिए पेंशन है, बच्चों को देना है, तो प्रॉपर्टी ना खरीद के फंड दे और आगे पास ऑन कर दे, इजियर टू डिस्ट्रीब्यूट, इजियर टू हैंडल। ये मेरा सवाल है सर। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, दोनों के अंदर चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे पैसा हो, दोनों में अपनी अटकलें होती हैं। प्रॉपर्टी के अंदर वारिस होते हैं, फिर वारिसों के अंदर डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, उनमें नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, बट नॉमिनेशन भी सिर्फ कस्टोडियन होता है, वो जो है रियल ओनर नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ अपने बच्चों के लिए करना है, एक दो तरीके हैं उसमें। या तो उनके नाम पे आप, अगर वो माइनर नहीं है, माइनर भी है तब भी उनके नाम पे आप वो एसेट खरीदें या वो अकाउंट बनाए। जैसे लड़कियों के लिए भारत सरकार ने निकाल रखा है, और भी बहुत सारे जो वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाल रखी हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी RBI बॉन्ड है, उनमें उन बच्चों के नाम पे ही कर सकते हैं, ताकि अगर आपको उनके लिए ही छोड़ना है तो उनके नाम पे करें तो वो उनके लिए ही रहेंगे। अगर फाइनेंशियल एसेट्स में करना है, घर भी अगर आपको करना है तो उनके नाम में करें। आजकल तो काफी सारी स्टेट्स जो है गिफ्ट के थ्रू माध्यम के बहुत कम रेट पे ट्रांसफर भी अलाउ कर रहे हैं। तो अगर आपका मन विचार बन चुका है कि किसको क्या देना है तो उसको अभी करके रखें तो बेटर रहेगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमन हियर इज दैट इफ वी इन्वेस्ट in the property that's highly illiquid, it's not that easily liquidated, whereas if with the financial products, especially with shares and other things like that, mutual funds and other instruments, that's not that much of a worry. No, I would disagree here. Let me tell you very frankly, if suppose something happens to someone, then those shares also become very illiquid. I know large number of cases where parents have held shares and they could not be transferred to their children for some reason or the other because of documentation, signatures, registered wills are not being present. Yes. As far as property is concerned, yes, it is considered to be liquid. Why? Because mentally we have decided that this is a price we want to get. If we want to get a less price, then the property is as liquid as gold or cash. Because if we, what happens is we get to know a particular price in the market. So the property has risen. Now we are not ready to sacrifice it. If we are ready to sacrifice that value and see whatever is a good value which I get, then it is easily liquidable.
महाराष्ट्र से हमारे साथ मुकुंद जुड़ चुके हैं। मुकुंद जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। सवाल पूछिए। थैंक यू। आप सब टीम को मेरी ओर से नमस्कार और हैप्पी दिवाली। नमस्कार। हैप्पी दिवाली आपको भी। थैंक यू। मैं आपको पीपीए के बारे में पूछना चाहता हूँ। किसके बारे में? एक बार फिर पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अच्छा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में, इंडियन पोस्ट ऑफिस। जी जी जी। तो मैंने उसको 15 साल होने के बाद 2 बार रिन्यू किया, 5-5 साल का। ठीक है। तो अभी मुझे वो अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ मैं, या पैसे निकालना है तो कौन से साल का कितना बैलेंस का मुझे अमाउंट मिल सकता है? ये दो मेरे सवाल है आपके लिए। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर आप बीच में निकालते हैं तो कुछ प्रपोर्शन निकाल सकते हैं, और पहली बात 15 साल के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5-5 साल जो आप रिन्यू करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कितना पोर्शन। जो पहले 15 साल होता है उसमें हर कुछ पीरियड के बाद कुछ प्रपोर्शन निकाल सकते हैं, सारा नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास समय है तो उसको पूरा कंप्लीट होने दें, उसके बाद निकालें तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज जो पीपीएफ में एक सेफ इंटरेस्ट मिलता है वो हर एक इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल पाता है। जब आपने किया ही है तो उसको करके रखें। जी अमन जी, अगर कल के बाजार को हम नजर डालें तो खास तौर पे एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, जिसकी अच्छी खासी अगर बाजार की भाषा में कहें तो पिटाई हुई, और खास तौर पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे कि इस तरह की गिरावट? देखिए जी, कोई स्पेसिफिक कारण ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में कोई न्यूज आई हो। अभी तो वित्त मंत्री भी बाहर हैं हिंदुस्तान से, तो उन्होंने भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करी है। ना कोई शेयर की मूवमेंट में या कोई ऐसी आई हो, या आरबीआई से कोई सूचना आई हो कि कुछ ऐसी बात हो। तो मेरे विचार में एक ये जो ट्रेंड गिरावट का मार्केट का आया हुआ था, उसका साइड इफेक्ट बैंकों के ऊपर हमें कल देखने को मिला है। और जैसे मैंने कहा, एक्चुअली बैंकिंग क्षेत्र एक सेफ सेक्टर माना जाता है। तो ज्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी हैं या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई जिन्हें कहते हैं हम, वो भी काफी निवेश करते हैं उनमें। और जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ समय एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बाहर की तरफ गया है, जो मैंने शुरू में बताया, तो इस वजह से उनका आउटपुट हमें देखने को मिला हो सकता है। पर ऐसा कोई कारण भारत के अंदर नहीं है कि बैंक में कुछ हुआ हो। तो निवेशकों को घबराने की निवेशकों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर सुदृढ़ रहा है। जब 2007 का क्रैश हुआ, उससे पहले क्रैशेस हुए, 1993 का क्रैश हुआ, 1987 का क्रैश हुआ वर्ल्ड के अंदर, तब भी भारत का बैंकिंग सेक्टर सेफ रहा। एक निवेशक जो बैंक में रखता है पैसा, वो भी सेफ रहा, और जिसने स्टॉक मार्केट के थ्रू उसमें इन्वेस्ट किया, वो भी सेफ रहा। Banks have always been very resilient, Aman, if I may say so. If you look at the bank Nifty data of day before yesterday, it was quite on the rise. It ended in quite some green. Yes, generally, there is a positive wave for it, but then ups and downs are normal cycle. As I say always, in stock market, in any sector, whether it is a bank or defense or AI or any other sector, should behave like a heartbeat, which goes up and goes down. That is a normal movement of a thing. If it is not happening like that, and if it is only going up or only going down, then it is a matter of worry. I'm not saying only going down. Even only going up is a matter of worry, because that shows hypertension which is getting built up in that particular share or by that particular stock. Not that it is an overconfidence. So that can build up and create problems for the future. And even the flat line, straight line on the monitor is very fatal. Is very fatal, and that should not also be there. तो श्रोताओं, अब वक्त है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। अमन जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। Before we close, a reminder of the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for the World Bank to promote a two-way exchange of innovations. ESI scheme enrolls over 20,74,000 new workers in the month of August this year. And on the Wall Street, the Nasdaq gains 0.6% and the mega cap shares ahead of quarterly results, the major companies. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.